Hello students, now we will move further with our topic redox reaction. Now I have already told you in my introduction reaction about this modern concept of oxidation and reduction. Please, you don't recall that previous concept that you have already studied in your class 10th. Now it is completely new and you have to focus only on this concept, that is the modern concept of oxidation and reduction, and which is the electron concept that I have already discussed, which was the electron concept. So according to this electron concept, what was the oxidation? What was oxidation? According to this electron concept, oxidation is a process of de-electronation. Oxidation is a process of de-electronation. That means loss of electrons. Loss of electrons, or you can say it is a process in which an atom, ion or molecule loses one or more electrons, right? और you can say it is a concept of de-electronation, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो, that concept या उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन, or we'll take some example of it, then we'll proceed with the reduction. Okay, and it's very important how to represent it, because representation is very important in this particular chapter. So how to represent? Now you know that you have already studied that Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? सी, Na is in its elemental form Na. After losing one electron, you can say minus E, it becomes Na positive, right? Or you may write in this way, you can represent loss of electron in this way. Here it is negative, there it will become positive. You can write in this way, Na positive plus E negative. This is the best way to represent the oxidation. See, sodium after losing one electron becomes Na positive. To represent oxidation, this is the way. This is basically the way to represent the oxidation. So how will you represent Zn after losing two electrons? What it will become? Zn2 positive plus 2 electrons. Okay, Zn2 positive plus 2 electrons. See again, ferrous to ferric. How will you represent? Ferrous 2 positive, ferric 3 positive. It lost 1 electron. Actually, this is the way to represent the loss of electrons, or you can say to represent oxidation. Now in these example, an atomic or ionic system has completely changed into more electronegative, or you can say more electropositive or less electronegative state by the loss of electrons. Okay, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा है और कम से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो रहा है. मतलब हमें पता चल रहा है कि it can lose electrons. So oxidation is a process in which de-electronation occurs. I'll explain again. Oxidation is a process of the de-electronation, or you can say in which an atom, molecule or ion loses its 1 or 2 electrons. उस process को हम लोग क्या बोलेंगे? Oxidation. And this is the best way, or you can say this is the way to represent the loss of electron. Sodium after losing 1 electron becomes Na positive, you know it, and उसको represent कैसे करना है? Na in products, Na positive plus electrons, Zn2 positive plus 2 electron, as it has lost 2 electrons. Similarly, we'll move further on reduction. I think so you people will completely understand the meaning of oxidation by this concept. Reduction.
Now what is a reduction? Now what is reduction? Now reduction is a process in which atom, ion, molecule gains one or more electrons. ठीक है, तो अगर वो प्रोसेस डी इलेक्ट्रोनेशन था तो ये प्रोसेस क्या होगा? इलेक्ट्रोनेशन. क्या होगा ये? इलेक्ट्रोनेशन. बिकॉज इन दिस द स्पीशीज आर गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. इसमें क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज इन दीज स्पीशीज आर गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो you know that chlorine exists as a diatomic gas. In its elemental form it exists as a Cl2, and every element or every every element exists in their elemental form with the zero state. You can zero valency, you can say. I'll explain it. It is not actually called as valency. I'll explain it further what it is called. Okay, so now what it will do? See, it is Cl. After losing, if you have to break the bond, what it will do? It will also get one electron. It will also get one electron, and it will become Cl2 plus 2 electrons. क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? 2Cl negative. यानी कि क्लोरीन गैस व्हेन इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम्स 2Cl negative, यानी कि क्लोराइड आयन बन जाएगा. इट विल बिकम अ क्लोराइड आयन. या Fe2 पॉजिटिव, यू कैन से Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? ये फेरिक से क्या बना? फेरिस बन गया आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. बेसिकली दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द reduction, gain of electrons. You can say, you can represent the gain of, suppose manganese 7 पॉजिटिव से क्या बन रहा है? मैंगनीज 2 पॉजिटिव बन रहा है. तो इसमें आप कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है टोटल? तो गेन हम लोग अगर इजीली करना है तो आप नंबर लाइन बना सकते हो. जैसे आप बनाते हो नंबर लाइन -1 -2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7. तो ये क्या बना? 7 से कहाँ आया? 7 से 2 पे आया. 7 पॉजिटिव से कितना आया? 2 पॉजिटिव आया. तो हम देखते हैं कितने इसने गेन करे होंगे. 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे. तो यहाँ पे लिख दो 5 इलेक्ट्रॉन. तो मतलब आप नंबर लाइन से भी उसको रिप्रेजेंट, अगर आपको नहीं बनाना आ रहा, अभी कितने इसने, सपोज आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मैंगनीज 7 पॉजिटिव 2 5 मैंगनीज 2 पॉजिटिव हो रहा है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? तो अगर आपका उसमें नहीं, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो. नॉट मेनी स्टूडेंट, इफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, दे कैन ड्रॉ दिस नंबर लाइन एज वेल, एंड विद दैट यू पीपल विल बी easily figure out how many electrons this manganese has gained. Okay, so moving further. Okay, how to represent this loss of electrons, or you can say how you will redox reaction, how to represent this redox reaction. Basically how you will represent this redox reaction. You will represent this redox reaction. See here, metal, take metal 0. Okay, after M पॉजिटिव, अगर उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, M2 पॉजिटिव, M3 पॉजिटिव, M4 पॉजिटिव, similarly going here. If it is gaining 1 electron, 1 negative, okay, if it is gaining electrons, M2 negative, 3 negative, similarly moving. So here if you move from left to the right, so here it represents the oxidation.
or you can say loss of electrons. Again, according to this number line, again it is same as number line. Okay, let me focus this camera. Okay, again it is same as the number line. Similarly, if you move from right to the left, it will represent the reduction. It will represent a reduction, or you can say gain of electrons. It will represent oxidation. If we move left to right, it will represent oxidation, loss of electrons. If we move from right to the left, it will represent gain of the electrons. Okay, or you can say this equation can be represented as reducing agent. What is reducing agent? We have already reducing agent, because reverse में भी हो सकता है. This arrow actually represent for reversible reaction. That means वापस जैसे हमने लास्ट में करा था, हमने इसमें क्या बनाया, पहले ऑक्सीडेशन में हमने क्या करा, फेरस से फेरिक करा, और रिडक्शन में हमने फेरिक से फेरस कर दिया. मतलब ये रिवर्स हो सकता है प्रोसेस. व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे. जो खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे. तो रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऊपर से क्या लिखेंगे, मतलब उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है. तो वो क्या बन जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और वापस से क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, उसकी रिडक्शन हो गई, और वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसकी खुद की क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन. क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन. तो इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन. तो ये क्या बना, Fe3 पॉजिटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली Fe3 पॉजिटिव से क्या बन गया, Fe3 पॉजिटिव से क्या बन गया, Fe2 पॉजिटिव. तो मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे गेन करके क्या लिख रहे हैं हम, रिडक्शन. सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन. दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ redox reaction. Now I have already told you that in the introduction part that oxidation and reduction both always go hand in hand, because जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही क्या होगा, रिडक्शन. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय previous lecture, or you can say previous video introduction part, that oxidation and reduction both are complementary to each other, or you can say they will always go hand in hand, as a redox reaction consists of two half reactions. दो हाफ रिएक्शन में बटा होता है. एक हाफ रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरा हाफ क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड फ्लोरीन टू फॉर्म सोडियम फ्लोराइड. अभी हम देखते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसको, ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ लेंगे. ऑक्सीडेशन हाफ, तो सबसे पहले हम लेंगे ऑक्सीडेशन हाफ. ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ को. तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी, क्योंकि बिकॉज वी आर नाउ मेकिंग सोडियम फ्लोराइड. ठीक है, तो हम देखते हैं कि रिएक्शन बिटवीन सोडियम फ्लोराइड टू मेक, सोडियम और फ्लोरीन के बीच में रिएक्शन कैसे होता है टू मेक सोडियम फ्लोराइड. अभी ऑक्सीडेशन किसकी होगी, सोडियम की. ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस इज Na पॉजिटिव F नेगेटिव. तो सबसे पहले हमें पता ही है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, सोडियम की हो रही है. तो Na, तो उसको रिप्रेजेंटेशन मैंने ऊपर ही सिखा दी उसकी, कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन,
and you know that sodium in its elemental form exists as Na only, and reduction half of fluorine, and fluorine you know that in its elemental form it exists as F2. So F2 क्या करेगा, F2 2 electrons gives 2F negative, 2F negative. तो अभी क्या करेंगे, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे गो हैंड इन हैंड. तो हम इसको बैलेंस करने के लिए तो ऑक्सीडेशन हाफ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द ऑक्सीडेशन half with 2 to make the number of electrons same in both the half reaction, as again both go hand in hand. So क्या होगा 2Na positive plus 2 इलेक्ट्रॉन. इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. जब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स वाली साइड में कट जाएंगे. तो क्या होगा 2Na प्लस F2 गिव्स 2Na पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव, 2Na positive plus 2F negative, or you can say 2NaF. 2NaF. I'll write it again. 2Na plus F2 gives 2NaF. इसका मतलब तो बेसिकली यही होता है, Na पॉजिटिव F नेगेटिव. तो जब भी आप कभी बैलेंस करते हो, जैसे आप हमेशा ये NaCl जब बनाते हो या NaF2 बनाते हो, तो आप क्या करते हो, NaCl2 क्या हो जाता है NaCl. तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हो 2, क्योंकि NaCl प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 है तो यहाँ 1 तो 2. अभी पता चला ये कैसे बनता है. ये बेसिकली ये 2 कहाँ से आता है, 2 क्यों आगे लगता है, बिकॉज क्लोरीन इट्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म एग्जिस्ट एज Cl2, बिकॉज आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स क्लोराइड आयन. सिमिलरली फ्लोरीन आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेगा, फ्लोराइड आयन. क्या बनेगा, फ्लोराइड आयन. तो उसके बाद हमको, बिकॉज दे बोथ गो हैंड इन हैंड एज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2Na गिव्स 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके साथ मल्टीप्लाई. फिर इन दोनों हाफ रिएक्शंस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो हमारे पास क्या बनेगा 2Na प्लस F2 2NaF. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ redox reaction. So now in which the material again will say will find out the oxidizing agent and reducing agent in this. So क्या था, so the material which gains one or more electron is termed as oxidizing agent. मतलब जो खुद रिड्यूस हो रहा हो, जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही हो. तो रिडक्शन किसकी हो रही है, फ्लोरीन की, Na. तो here fluorine is the oxidizing agent and sodium was the reducing agent. Okay, now again I'll discuss the conclusion for the same. So conclusions are, oxidation is a process in which one or more electrons are lost or valency of the element increases. मतलब उसकी वैलेंसी इंक्रीज हो जाती है, एक या एक से ज्यादा. पहले यहाँ पे उसकी वैलेंसी 0 थी, अभी उसने 1 लॉस किया तो उसकी वैलेंसी Na पॉजिटिव हो गई. मतलब जब उसकी वैलेंसी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, मतलब ऊपर हो रही है, बढ़ रही है, उसकी स्टेट बढ़ रही है. तो 0 से पॉजिटिव हो गई, तो मतलब जब उसकी वैलेंसी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. एंड रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस. जैसे उसकी वैलेंसी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, जैसे डिक्रीज नेगेटिव, यहाँ 0, तो डिक्रीज उसकी वैलेंसी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ मटेरियल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ मटेरियल विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसकी वैलेंसी क्या हो,
डिक्रीज हो, दैट मीन्स जिसकी रिडक्शन हो रही हो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब जो रिड्यूस, खुद को रिड्यूस कर रहा हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट, because every time there is a confusion between oxidizing agent and oxidation. Oxidizing agent मतलब जिसकी रिडक्शन हो रही है, reducing agent means जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. So don't get confused in both the terms, oxidation and reduction, and oxidizing agent and reducing agent. Please don't get confused in both of these terms. Reducing agent means वैलेंसी इंक्रीज, जिसकी वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट. सो नाउ विल हैव वन एग्जांपल जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, एंड व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हिच इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, आई विल टेक वन एग्जांपल. Hg2 positive. I'll add one assignment in the description box. Please try to solve that assignment. If any doubts, please put the doubts in the comment section below. Tin, mercury 2 positive, tin 2 positive here becomes Hg2 2 positive, Sn4 positive. Now see what happens. Now we'll divide the reaction in two halves first of all. Okay, so it is very clear from tin. Here tin is 2 positive, here it has become 4 positive. So इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. क्या हो रही है इसकी, ऑक्सीडेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिवाइड द रिएक्शन, और इसकी बेसिकली क्या हो रही है, रिडक्शन. तो पहले हम देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हुए हैं और कितने क्या हुए हैं, गेन हुए हैं, कितने ऑक्सीडाइज हुए हैं, कितने रिड्यूस हुए हैं. तो हम देखते हैं. चलो हम ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ लिख देते हैं. पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे. ऑक्सीडेशन हाफ Sn2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव, मतलब नंबर लाइन ड्रॉ करो, कितना बनेगा, आई ड्रॉ. जिसको समझ में आ रहा है तो आसान बात है कि हाँ इसमें कितना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दैट विल मेक योर क्वेश्चन अ बिट इजियर. 2 से कहाँ जा रहा है, 4 पर. और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि अगर हम लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो क्या होगा, तो क्या है, 2 से 4 हो रहा है, 2 से 1 2, कितने कर रहे हैं बेसिकली लूज, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो हाउ टू रिप्रेजेंट इट, Sn4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट, और दिस इज एक्चुअली द वे टू रिप्रेजेंट द oxidation half. Now reduction half. Reduction half, how to represent reduction half, टू Hg 2 पॉजिटिव. अभी ये बना Hg, तो इसने कितने करे हैं, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, बिकॉज गेनिंग हमें किस साइड पे लिखनी है, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, 2H, इसने क्या करा, गेन कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या करे, गेन करे. ठीक है, तो ये बन गया. अभी ये Hg2 के ऊपर 2 पॉजिटिव है, और यू कैन से ओवरऑल एक Hg के ऊपर क्या है, 1 पॉजिटिव आ गया. और ये बैलेंसिंग करने के लिए करा. अभी चलो देख लेते हैं, आपको मैं दोबारा से समझा देती हूँ इसको. Hg2 पॉजिटिव से क्या बनेगा, Hg2. ठीक है, Hg2 पॉजिटिव से क्या बनेगा, Hg2. तो बेसिकली ये 2 पॉजिटिव से 0 हुआ ना, तो बेसिकली ये ऐसे होता है. तो अगर इसको बैलेंस करके, यहाँ पे Hg1 है 2,
तो ये 4 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे ही लिखते हैं इसको, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। मतलब Hg यहाँ पे मरकरी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना रहा है, Hg 2 पॉजिटिव। अभी इसको हम इसका हमने हाफ हाफ अलग कर दिया, तो हमें इजीली पता चल गया कि इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स करे हैं, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने लूज करे हैं और इसने गेन करे हैं। तो हम बेसिकली बोल रहे हैं कि ये हैंड इन हैंड। तो हमें कुछ इतनी एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ गो हैंड इन हैंड। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप प्लीज उनको जाकर करिएगा। तो आगे आप फिर उसके बाद हम आगे फर्दर मूव करेंगे विद द ऑक्सीडेशन नंबर्स एंड वैलेंसीज, व्हाट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर्स, एंड आफ्टर दैट विल मूव फर्दर।